శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. नमः श्रियः कान्तायां कल्याणां निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి.
చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధం పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానసం భగవచ్ఛాస్త్రం ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்பன் சுவாமி திரு கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் இந்த நன்னாளிலே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இந்த திருமண வைபவத்திலே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, நாமும் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற அந்த நாமஸ்மரணம் செய்து கொண்டே அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம் வாருங்கள். அன்னபூரணி அருள் நிறைந்த மலை, ஆனந்தம் நிறைந்த அழகன் மலை, இயற்கை வளம் நிறைந்த ஏழுமலை, ஈசன் அருள் பெற்ற மலை என்று அந்த திருமலையில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் அர்ச்சா ரூபியாய் எழுந்தருளி நம் போன்ற பக்தர்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த பகவான் எம்பெருமான். பக்தர்களே, இதோ அந்த பகவானை சேவிப்போம். பூ மாலையாலும் பா மாலையாலும் அலங்கரித்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான் எம்பெருமான். வித்தகன் என்றால் விசித்திரமான சக்தி உள்ளவன் அல்லவா? மாயன், மாமாயன், ஆச்சாரியப்பட்டதக்க பராக்கிரமம் உடையவன், அற்புதன், வியக்கத்தக்க செயல்களை செய்பவன் என்றெல்லாம் பொருள். வேங்கடம், அதாவது வேம் பிளஸ் கடம். வேம் என்றால் பாப்பங்கள், கடம் என்றால் அழிந்து போவது. போய பிழையும் புகு தருவான், நின்றனவும் தீனால் தூசாகும் என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடுகிறாள். பக்தர்களே, வித்தகன் வெங்கடநாதன் என்ற திருநாம சங்கீர்த்தனம் செய்தால் பாப்பங்கள் எரிந்து சாம்பலாகும் என்று ஆண்டாள் உபதேசம் செய்கிறாள். வெங்கடவானான் என்றால் கலியுகத்தில் பூலோக வைகுண்டனாக திருவேங்கடம் என்னும் திவ்ய தேசத்தில் நித்திய வாசம் செய்பவன், நன்கு இன்பமாக வாழ்பவன் திருவேங்கடவன், பரிபூர்ணன், பிரான், முழுமுதற் கடவுள் என்று பொருள் கொள்ளலாம். आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंग करकाराधनं करिष्ये. ओम धारासु सप्तशुषमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गृणोमि दत्तागं शुचिरकं शुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञगाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इंद्रस्सवितोद विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्. ओम वर्णमावाहयामि प्रतेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारागाम् अगमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फलमावाहयामि अक्षते काष्कवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि. आवाहितदेवताभ्यो नमः. वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि. वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि.
वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिर्गामे सुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अभितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगादयित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाचिकतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिः प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगहां शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगहां शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगहां शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो विभञ्जवोजाक्रवागं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गदत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागं सस्तनोभिर्वयसेम देवहितं यदागुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागित्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्त्यमानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तो आदितिर्त्योरतितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्चनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवीतोपविकुशं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वोपकरणत्रविशत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतञ्जीवेम शरदस्वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्थान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जरगथाचनः ओं पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता सपनातमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकं वृणो यत्ते पवित्रमच्युषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्
यज्ञस्यामपदगौर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रभिः वरसिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्मनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्नुन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पौतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्पुस्त्या वरुणः समीचिका यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्त्विजो मार्तिगन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मार्तिगन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा पशवो मार्तिगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधगो वनस्पतगो मार्तिगन्तामूर्भागां दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्तिगन्तामथोधराधरीर्नागेभ्यो मार्तिगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यतिवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चुषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु दुरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाय च ஓ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமுலை சாற்றுதல், அதாவது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம். தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்றார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதோ அந்த பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து இந்த நித்திய கல்யாண உற்சவத்திற்காக தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். ஒரு மனிதன் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனிடத்தில் செல்வம் எனும் பணம் தேவை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவது வழக்கம். நாளைக்கு எனக்கு 1000 ரூபாய் தேவை, யாரிடமாவது கேட்டு புரட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வதை கேட்பீர்கள் அல்லவா? இங்கே புரட்டிக் கொள்ளுதல் என்றால் உள்ளவர்களிடமும் கேட்டு சேகரித்து கொள்ளுதல் என்று பொருள்படும். எல்லா செல்வங்களும் வைத்திருப்பவன் இறைவன். அவன் திருவருள் மங்கள ஆசிகளாக கிடைத்துவிட்டால் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் சேர்ந்துவிடும். பக்தர்களே, துன்பங்கள் மாறி புதிய வாழ்க்கை பிறந்துவிடும். செல்வத்தை தேவைக்கு புரட்டுவது போல இறைவனுடைய ஆசிகளை புரட்டுவதற்கு என்றே ஒரு மாதத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அதுவே புரட்டாசி மாதம். பக்தர்களே, புரட்டாசி மாதம், அதுவும் சனிக்கிழமை, மிகவும் அந்த பகவானுக்கு உகர்ந்த நாள் அல்லவா? அப்படி புரட்டாசி என்றால் 3 விஷயங்கள் நம் நினைவுக்கு வரும். புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் போடப்படும் படையல், 2வது மங்களகரமான மஞ்சள் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு திருப்பதியை நோக்கி செல்லுகின்ற யாத்திரை, 3வது விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு ஓங்கி ஒலிக்கின்ற கோவிந்தா நாம கோஷம். அப்படி நாமும் கூட
கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஜபித்து கொண்டே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். பக்தர்களே, அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதை அடுத்து ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆதி சேஷனை ஆவாகனம் செய்து அந்த ரக்ஷைக்கு பூஜிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்தாற்போல் ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம் இந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் திரு கல்யாண உற்சவத்திலே. ஆதிசேஷா சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். शुचीवोहव्यामृतशुचीनाकं शुचिकं हिनोम्यत्फलकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगन्तु जन्मानश्रुचयः पावकाः ॐ शन्नो निधत्तां तपसोऽधिहर्तां स्वयंबुरक्रेमतगे मृतागां ॐ शेषमावाहगामि स्वास्तीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुपप्रवामहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्त्रभवस्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मत्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति वन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் முடித்தார். இதை அடுத்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி எழுந்தருளி இருக்கின்ற தலங்கள் ஏராளமாக இருப்பினும் திருமலகிரி என்கிற மலையின் மீது திருவேங்கடவன் எழுந்தருளி இருக்கும் தலம் ஒன்று ஆந்திர மாநிலம் கிருஷ்ண மாவட்டத்தில் உள்ளது. கலியுக கண் கண்ட தெய்வம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஸ்வயம்புவாக வெளிப்பட்ட இந்த தலம் திருமலகிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ண மாவட்டம் திருநீலகிரி கிராமத்தின் அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய குன்றின் மீது திருவேங்கடவன் கருவறையில் வல்மீக புற்று வடிவத்தில் கோயில் கொண்டுள்ளார். திருமலை திருவேங்கடவன் என்ற பெயரிலேயே இந்த மகாவிஷ்ணு கோயில் கொண்டுள்ளது மிக சிறந்த சிறப்பாகும். பக்தர்கள் இந்த குன்றை இன்னொரு திருமலையாக கருதியும் வழிபடுகின்றனர். இந்த ஆலயம் நிர்மாணம் செய்வதற்கு முன்பாக இந்த திருமலையை சுற்றியுள்ள பகுதியில் பசு மேய்ப்பவர் ஒருவர் தன் பசுகளை மேய்க்க கொண்டு செல்ல அங்குள்ள புற்று ஒன்றின் மீது பசு பாலை சொரிந்ததை கண்டாராம். பசு மேய்ப்பவர் அந்த புற்றின் அருகில் சென்று புற்றில் சுவாமி இருப்பதையும் பசு அவர் மீது பால் சொரிந்து கொண்டிருந்த அற்புத காட்சியையும் கண்டு அதிசயப்பட்டு தன் எஜமானரிடம் சென்று இந்த விவரத்தை தெரிவித்தாராம். எஜமானர் இது தெய்வ செயல் என்று மகிழ்ந்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு விருப்பமான பசுவின் பால் மற்றும் நெய்யில் சர்க்கரை பொங்கல் தயாரித்து எடுத்து வந்து நிவேதனம் செய்வது பரவசப்பட்டாராம். பக்தர்களே, திருமலகிரியில் தவம் செய்த சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரான ஸ்ரீ பரத்வாஜ முனிவருக்கு சுவாமி வல்மீக வடிவில் காட்சி தந்ததாக தலாபுராணம் கூறுகிறது. திருமலகிரி வெங்கடவன் ஆலய தூப தீப நைவேத்தியங்களுக்காக ராஜா வெங்கடாத்ரி நாயுடு பயபக்தியுடன் சிறிது நிலத்தை எழுதி வைத்தாராம். பக்தர்களே,
அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலகிரி திருவேங்கடவன் ஆலயம் செல்லும் பக்தர்கள் முதலில் திருமலையில் கீழ் உள்ள பிரதான வரவேற்பு வளவை அடைகின்றனர். படிகளில் ஏறி செல்லும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரின் திருப்பாதங்களை தரித்து முதலாக சுவாமியின் பாத முத்திரை பட்ட இடத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பாத புஷ்கரணியில் புனித நீராடுகிறார். ஆலய நுழைவாயிலில் 5 நிலை ராஜகோபுரம் அலங்கரித்து மகா மண்டபத்தில் கொடிமரமும் கருட ஆழ்வார் சன்னதியும் உள்ளன. இங்குள்ள பஞ்ச லோக்கத்திலான உற்சவ மூர்த்தி ஸ்ரீதேவி பூதேவியோடு காட்சி தருகிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்பன் சுவாமி நமக்கு திருமலையில் எழுந்தருளி அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து அதை முதலில் பகவானுக்கு திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு பகவானுக்கு என்னென்ன பூஜை விதானம் செய்தாரோ அதே போல் இந்த பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்தாற்போல் ஸ்ரீதேவி திருக்கரத்திலே இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாம ஸ்மரணத்தை செய்து கொண்டே இந்த திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். பலருக்கு குல தெய்வமாகவும் இஷ்ட தெய்வமாகவும் வரம் தரும் தெய்வமாகவும் விளங்குகின்ற பெருமாள் தான் திருப்பதி பெருமாள் அல்லவா? திருப்பதி பெருமாளுக்கு என்றே ஒதுக்கப்பட்ட மாசம்தான் புரட்டாசி மாதம். புரட்டாசி மாதத்தில் திருவோண நட்சத்திரத்தில் தான் அவருடைய அவதார திருநட்சத்திரம். அதை ஒட்டிதான் திருமலையில் பிரம்மோற்சவம் நடக்கும். உலகெங்கும் இருந்து திருப்பதிக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் உற்சவம் காண கூடுவார்கள். இந்த புரட்டாசி மாதத்தை விரத மாதம் என்றும் சொல்லும் வழக்கம் உண்டு. பக்தர்களே, இதோ பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மற்றும் இந்த நித்திய திரு கல்யாண வைபவத்திலே எந்த ஒரு தடையும் வராமல் இருக்க அந்த ரக்ஷையை அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலே அணிவித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மது பார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், கன்னிகாதானம், மாங்கல்ய பூஜை என்று நித்திய திரு கல்யாண வைபவத்திலே நாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்பொழுது சேவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, இரு கரம் கூப்பி பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் சேவிக்கலாம் இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை. ஆதிசேஷனே, சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்றும் சேவிப்போம். देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानङ्कितमानस्य हन्तुं शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्करेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भात्यन कन्योमगो पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजारन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधेक्यजस्रोदीदिहिनोदुरोणीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवदविदप्रसुवाम् तत्सविदुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य देवहीं धियो गो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः वेन आवहां स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरमसुतश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदज्जुगं सभेगं विदुश्रवणिज्ञो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्वं नागस्य पृष्ठे गतमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञैयजमानजते ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वाम् अन्तरिक्षाय त्वां पृथिव्यै त्वां पोषाय त्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णां दसन्त्वास्तनामीं स्वादस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतमदेश्कैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रिको ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छाम् प्रणयगिक्तिं देवतामर्थयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञैयजमानजतेः ॐ प्रणयाम् कोपगिनक्ति सभागिनक्तुं संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागैः दक्षिणप्रविधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रविधौ अग्नि सोमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत स्वाममावाहयामि औपासनेक्नमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आद्यं द्रव्यदिष्टगामि चरं द्रव्यदिष्टगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकहां प्रत्यष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधकहां चित्पतिस्वापनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां वाक्पतिस्वापनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां देवस्वादवितापनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां तत्सविर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वां मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आच्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः नर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् आगन्तयत्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववत्तस्वतेऽर्थवत्तगतास्मान् पतगापशुभिर्ब्रह्मवत्तसेनान्नात्येन समेतगे स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा नैऋत्यागीशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्क्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्जुहोतिम् ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवदविदप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयधान दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य गुच्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सुरा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वदक्षराददग्गस्वा
स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृभागं सस्समिन्धतें विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే स्याम् श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रगमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृतेम् अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्यसप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यशल्लोकानामधो भागे
महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डितेम् ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भितेम् अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवती लकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजितेम् इन्द्राग्नियमनिर्वर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालितेम् लोकालोकाचलवलगितेम् लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृतेम् जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपितेम् महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजितेम् भारतकिं पुरुष हरिलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्यें भरतवर्षें भरतखण्डें महासरोरहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डलें लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपें दण्डकारण्यें प्रजापतिक्षेत्रें कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रें वेङ्कटाचलें मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि चां एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे चाम् आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं तस पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम सान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदके नन्दकशार्ङ्गादिपञ्चागतधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्योह विभेदेन प्रवर्तमानस्यां परतत्व विभव व्योह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्यां श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्त देवतां निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां
भार्गवसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जाताम् भृगोः सङ्कल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेगप्रवरान्विताम् काश्यपसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजगेशयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलागसुमेधसेम् प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஏழுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையப்பனுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய பூஜை. அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி பின்பு அதற்கு அர்க்கியம் பாதியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டுள்ளார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமி. அரசர்களின் வம்சங்களை பற்றி விளக்கமாக சொன்னீர்கள். ஆனால் எது குலத்தில் சர்வ வியாபகனாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரிச்சேதப்பட்டு முழுமையாய் காண்பதால் அம்சம் என்று சொல்ல தக்கதாய் உள்ள அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தை பற்றி அடியேனுக்கு விவரமாக கூற வேண்டுகிறேன் என்று பிரார்த்தனை செய்தார் பராசர முனிவர். பக்தர்களே, மைத்ரேயரே, நீங்கள் கேட்டது போலவே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அம்சமான கிருஷ்ண அவதாரத்தையும் சரித்திரத்தையும் சொல்லுகிறேன். முன்பு தேவகனின் குமாரியாகவும் தேவகன்னியருக்கு தேவகியை வசுதேவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போது மணப்பெண்ணின் சகோதரனான கம்சன் மணமகளை கல்யாண ரதத்தில் ஏற்றி தானே அந்த தேரை ஓட்டி ஊர்வலமாக சென்றான். அப்போது ஆகாயத்தில் ஒரு அசரரி எழுந்தது. அடே மூடா, நீ தங்கையை அவளது புருஷனோடு தேரில் ஏற்றி சென்று மிகவும் பிரியமாய் நடத்துகின்றாய். அந்த தங்கையின் 8வது பிள்ளை உன் உயிரை போக்கும் என்று கம்பீரமாய் கூறியது. அதை கேட்டதும் கம்சன் தன் உடைவாளை உருவி தன் தங்கை தேவகியை கொல்ல துணிந்தானாம். அப்போது தேவகியின் கணவரான வசுதேவர் தம் மைத்துனனான கம்சனை நோக்கி, நீ இந்த அபலையை கொல்ல வேண்டாம். இவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் உனக்கு தந்துவிடுகிறேன். நீ அவர்களை உன் இஷ்டப்படி செய்து கொள் என்றான். அதற்கு இலகிய கம்சன் அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொண்டு தேவகியை கொல்லவில்லை. பக்தர்களே, அந்த காலத்தில் பூமி தேவி பூபாரம் தாங்க மாட்டாமல் துன்பமடைந்து மகாமேரு பருவத்தில் கூடிய தேவசபைக்கு சென்று பிரம்மதேவன் முதலிய தேவர்களை வணங்கி முறையிலிடானாள். தேவர்களே, பொன்னுக்கு பிதா அக்னி, பசுக்களுக்கு சூரியன் தந்தை, எனக்கும் சர்வ உலகங்களுக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே பிதா. உலக யாவையும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் ரூபங்கள் அல்லவா? பஞ்சபூதங்களும் தன் மாத்திரைகளும் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருமேனியே. இவையெல்லாம் கடலில் உண்டாகும் அலைகளைப் போல ஒன்றொன்று பாதிப்பவனமாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனாகவும் உள்ளன. இப்போது காலநேமி முதலான அசுரர்கள் பூ உலகில் பிறந்து இரவும் பகலும் பிரஜைகளை துன்புறுத்துகிறார்கள். முன்பு ஸ்ரீ விஷ்ணுவினால் சங்கரிக்கப்பட்ட காலநேமி என்பவன் இப்போது
உக்ரசேனன் மகனாக கம்சன் என்ற பெயரோடு பிறந்து விட்டான். இது போலவே அரிஷ்டன், தேனுகன், கேசி, பிரலம்பன், நரக்கன், சுந்தன், பாணன் முதலியவர்களும் அரச குலங்களில் பிறந்தும் கொடுமை செய்து திரிகிறார்கள். அவர்களை என்னை கூட எனக்கு சக்தி இல்லை என்கிறாராம். பக்தர்களே, தேவர்கள் முன்பு கொன்ற அரக்க பிறவியரின் சேனைகள் மிகவும் அதிகரித்து இருப்பதால் என்னால் பூபார சுமையையும் பாப்பிகளின் சுமையையும் சுமக்க முடியவில்லை. ஆகையால் தாங்கள் தயை கூர்ந்து என் குறைகளை போக்கி அருள வேண்டும் என்று பூமாதேவி வேண்டினானாம். அப்போது பிரம்மதேவன், தேவர்களே, நாம் திருப்பார்கடலுக்கு சென்று ஸ்ரீயப்பதிக்கு தண்டம் சமர்ப்பித்து இவற்றையெல்லாம் விண்ணப்பம் செய்வோம். அப்படி செய்தால் சர்வஸ்வரூப்பியான பகவான் பூமி நிமித்தம் சாத்விக அவதாரம் செய்து தருமத்தை நிலைநாட்டி அருள்வார் என்று சொல்லி தேவர்களை அழைத்து கொண்டு திருப்பார்கடலை அடைந்தனராம். மகாவிஷ்ணுவை தேர் தரிஞ்சு செயலாயினார். பக்தர்களே, இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு பூஜை செய்த பின்பு அந்த திருமாங்கல்யத்தை பகவான் முன்பு வைத்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து அந்த திருமாங்கல்யத்தை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க உள்ளார். கோவிந்தா. ஓம் பிரஜாபதிः सोमकुं राजानमसृजताम् तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापतिः सोमकुं राजानमसृजताम् तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सैता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनाम् कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु.
श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्ग्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवदनाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवदनाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भोर्भव शुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासाभिः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः द्वे वदक्षरादग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवागुं सुसमिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भोर्भव शुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासाभिः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ओम यदस्क कर्मणोत्यरीरितं यत्पान्योनमिहाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नादाग स्वाहा अग्नयेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषचन्द्रिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरात्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितिसितेजो मगिते स्वाहा यमस्य देमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य देमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य देमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्थेमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रिगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा
ॐ समङ्क्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्विषभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यन्नभो गच्छतु यत्स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवदविदप्रासावेः आवाहि देवताभ्योर्महागथा सुमथास्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भोगात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भोगात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जहोमि अक्षतमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्कां दक्षिणागां प्रतीच्काम् उदीच्काम् ऊर्ध्वागाम् अथरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्द्यान् परिसमोक्याम् ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागशं गमदग्नेः कस्य वश्कत्रगागशं यद्देवानां त्रगागशं तन्मे अस्तत्रगागशं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा शतं च वर्तते त्रगागशम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे दधातनां बहिर्नागचक्षुषे योवश्रवदमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगा गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनागतदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, பொறியிடுதல் என்கிற ராஜா ஹோமம் மற்றும் பூர்ணாஹுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை அடுத்து வாரணம் 1000. நாளை வதுவை மனம் என்று நாள் இட்டு
பாலை கழுகு பரிசு உடை பந்தர் கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஒரு காலை புகுந்து கனா கண்டேன் தோழினான். அதாவது ஆண்டாள் தான் பெருமானை திருமணம் புரிவது போல் கனா கண்டு தன் தோழிகளிடம் கூறுகிறாள். அந்த பாசுரமே வாரணம் 1000 நிகழ்ச்சியில் ஆண்டாள் பாடலை பாடிக்கொண்டே அர்ச்சகர் சுவாமியும் அன்னமையா வம்சத்தினரும் தேங்காய்களை உருட்டும் நிகழ்ச்சி என்பது அதன் பொருள். தோழி நாளைக்கு திருமணம் என்று நாளை உறுதி செய்து திருமண பந்தலை அலங்கரிக்கின்றனர். பந்தலின் கால்கள் தோறும் தென்னம் பனம் கழுகு இவற்றின் பாலைகளையும் காய்களுடன் கூடிய அனைத்தையும் எடுத்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றனர். அதையே வாரணம் 1000 என்கிற நிகழ்வு. வாரணம் 1000 என்கிற அந்த வைபவம் மங்களகரமாய் முடிந்தது. இதை அடுத்து மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். பக்தர்களே, மலர்களில் பல நிறம் கண்டேன், மாலவன் வடிவம் அதில் கண்டேன் என்று சொல்லுக்கு இறைவனுடைய வழிபாட்டில் மலர்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று பொருள். மலர்களுக்கு மனிதனுடைய எண்ணங்கள் கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி உண்டாம். பெருமாளிடம் எனக்கு நிறையா தனத்தை கொடு, தானத்தை கொடு என்று நினைத்து கொண்டு அந்த மலர்களை சமர்ப்பித்தால் அந்த பகவான் நாம் பிரார்த்தனை செய்ததை அனைத்தையும் தருவார். ஏனென்றால் பகவான் புஷ்ப பிரியர். புஷ்பம் என்றால் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியம். அப்படிப்பட்ட அந்த மாலா பரிவர்த்தனம். இதோ அந்த மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அந்த தாயார் சூடிய மலர் மாலையை திரும்ப கொண்டு போய் பெருமானுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த பெருமான் சூடிய மலர் மாலை இதோ கொண்டு போய் பூதேவி தாயார், பொறுமையின் பூஷணம் அல்லவா, அந்த தாயாருக்கு இதோ அந்த மலர் மாலையை சமர்ப்பித்து அவள் சூடி அந்த மலர்ந்த அந்த நறுமணமிக்க அந்த மலர் மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பெருமானுக்கு, பகவானுக்கு, மலையப்ப சுவாமிக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மாலை மாற்றுதல் 3 முறை அந்த கைங்கரியம் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, மாலை சாற்றினால் தோகை மாலை மாற்றினாள் என்பதற்கேற்ப அந்த பகவானுடைய திருமண கல்யாண வைபவத்திலே நாமும் கூட மாலை மாற்றுதல் என்கிற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் சேவித்தோம். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் 2 கரம் கூப்பி அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற நாம ஸ்மரணத்தை செய்து கொண்டே அந்த கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை 2 கரம் கூப்பி சேவிப்போம். இதை அடுத்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. அதன் பின்பு இதோ தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.